The need to be grateful is something which the Lord has been reminding me also. जो धन्यवादी होने की जो जरूरत है, जो परमेश्वर मुझसे याद दिला रहा है। In every situation, to learn to be thankful to the Lord and even to others. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से धन्यवादी रहना और दूसरों से भी, That is something which we should nurture in our lives. ये ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन के अंदर उससे हमें पोषण करना है। So we can look at our lives. Are we grateful to the situation God allowed in our lives? हमें अपने जीवन में झांक के देखने की जरूरत है कि क्या हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रहे हैं उसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि, Or instead it's all full of grumbling and murmuring. या फिर उसके अलावा हम सिर्फ कुड़कुड़ा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं। That is a terrible thing if our hearts are full of complaining, murmuring, and grumbling. और एक भयानक और गंभीर बात है अगर हम शिकायत कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। We will never be happy if our life is like that. हमारा जीवन अगर वैसा होगा तो परमेश्वर कभी हमसे खुश नहीं होगा। But that memory verse, Colossians chapter 4, verse 2, जो मेमोरी वर्स था कोलोसियंस 4:2 का, devote yourself to prayer, keeping alerted with an attitude of thanksgiving. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। So even while we are praying, we should have an attitude of gratitude. प्रार्थना के साथ साथ हमें धन्यवाद का एक रवैया होना चाहिए। Even when we sit and pray, we should remember God graciously how many prayers He has answered already. जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय में भी हमें स्मरण करना है कि कितने सारे चीजें जिसका प्रश्न है, जितने सारे प्रार्थना जिसका परमेश्वर ने उत्तर दिया है। So before we pray, before beginning only, we can remember so many things. I need to be grateful to the Lord because He has done so much in my life. प्रार्थना करने से पहले हमें ये स्मरण करना है कि कितने सारे बातें हैं जिसे परमेश्वर ने हमें पूरा किया है और उसके लिए हमें धन्यवादी होना है। So an attitude of thanksgiving is needed even when we pray. और धन्यवादी होने का जो रवैया है जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उस समय में भी रहना बहुत जरूरी है। I want to read another verse from Philippians chapter 2. और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों का 2 अध्याय, Verse 13 says, God is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारा मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है So that परमेश्वर ने। expression is God is at work in us. और इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर काम कर रहा है। So that is an encouragement in every situation in our life. God is doing a work silently inside us. और ये एक प्रोत्साहन भरा बात है कि परमेश्वर हमारे अंदर भीतर काम कर रहा है And we should be grateful for that. और हमें उसके लिए धन्यवादी होना जरूरी है। And it also says He is giving that will. He is giving that desire in me. और वो इस तरह भी कह रहा है कि वो हमें इच्छा भी दे रहा है। If you think even a desire to live a godly life, that also originates from God. और आप सोचिए एक आत्मिक जीवन जीने की जो इच्छा है वो भी परमेश्वर खुद ही दे रहा है। And He is giving that desire and He is also enabling us to fulfill that desire. और वो हमें इच्छा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसे पूरा करने का भी प्रभाव डाल रहा है। And then He is saying that do all things without grumbling and disputing, so that you prove yourself to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear lights in the world. और उसके आगे वो कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। We can understand this world is full of people. They are waiting for an opportunity to grumble and dispute and complain. और हम इससे जान सकते हैं कि ये दुनिया जो है जो कुड़कुड़ाने शिकायत करने वाले लोगों से भरा हुआ है। So in the middle of that, God wants us to
do all things without grumbling and disputing. और इन सभी लोगों के बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम उस तरह काम करें कि बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। Two things are written there. One is grumbling, second is disputing. और दो चीजें यहाँ पे लिखा गया है, कुड़कुड़ाना और दूसरा जो विवाद करना। We can do things, but along with the grumbling and after some dispute. और हम चीजें कर सकते हैं उस कुड़कुड़ा कर भी और विवाद के साथ भी। But this word teaches us do all things without grumbling and without also disputing. और ये बातें हमें बताता है कि हमें सब काम करना है बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। That is how we can be a witness to this world around us, blameless and innocent. और इस तरह हम जो है इस हटीले लोगों के बीच में हमें निर्दोष और भोले होकर रहना है। Yeah, I desire a life always with that spirit or with an attitude of gratitude. और मैं एक इच्छा रखता हूँ कि निरंतर मैं एक धन्यवादी हृदय लेकर बना रहूं। Gratitude to God and also to people around us and also for the situations. और धन्यवादी जो है परमेश्वर को भी और जो लोग मेरे सामने हैं बीच में मैं रहता हूँ और उस परिस्थिति का भी। God has blessed us so much in many ways. So that is why he said it is terrible to be grumbling and terrible to be complaining. परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो ये एक गंभीर और भयानक बात होगा कि हम कुड़कुड़ाए और विवाद करें। Amen. थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो वचन आज सुना। इस वचन को जब मैं सुन रहा था अपने आप को जांच रहा था कि हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं वो वॉचमैन जैसे लोग हैं जिसको हम नहीं क्षमा कर पाते हैं। कि एक क्षेत्र जहाँ मैं अपने आप को जांच पाता हूँ कि प्रभु मैं क्यों उनको क्षमा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा उन्होंने जो बुराई जो की है, जो चोट पहुँचाई है, हो सकता है हमारे नाम को चोट पहुँचाई है, हमारे विरोध में कुछ बोला है, कहा है, किया है, आर्थिक नुकसान हमको सहना पड़ा हो, लेकिन क्यों मैं उसको क्षमा नहीं कर पाता प्रभु। पिछले दिनों में कुछ ऐसे हालातों से मैं भी गुजर रहा हूँ जिसमें प्रभु ने दिखाया कि कैसे हम उन व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं जिसको हमें लगता है कि हम वो व्यक्ति प्रेम करने के लायक नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है आपको। लेकिन एक वचन बार बार मैं कहीं ना कहीं जैक ब्रदर के संदेशों से या एक सिस्टर ने भी मेरे साथ शेयर किया था कि क्या हम यहूदा के पीछे पिता परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं। और मेरे लिए वो बहुत ही कठिन था। यीशु मसीह ने उस यहूदा इस्कारियोत के पीछे उसके पिता परमेश्वर के हाथ को देखा। पतरस नहीं देख पा रहा था उस बात को। पतरस तुरंत ही बहुत ही ज्वलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वो उस सैनिक के कान को काट देता है कि कैसे इस हानि को तुम मेरे विरोध में, मेरे यीशु के विरोध में कर सकते हैं। वो पिता के हाथ को नहीं देख पा। और हम भी वहां पर अपने आप को जांच सकते, क्या मैं पतरस की ओर पाया जाता हूँ या बढ़ते क्रम पर यीशु मसीह की ओर पाया जाता हूँ, जहां मैं हर ऐसे व्यक्ति के पीछे जो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, क्या मैं उस पिता के, स्वर्गीय पिता के हाथ को देख सकता हूँ। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति उसका 45, जेनेसिस 45 उसका 5 वचन। यूसुफ के बारे में लिखा है, अंतिम भाग में लिखा है, जब उसके भाई को अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ जिन्होंने ये सब किया था। अंतिम भाग में 5 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने, जेनेसिस 45 5th वर्स 2nd पार्ट, वहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। अभी वो यहाँ पर उनको गिनने की कोशिश नहीं कर रहा था, यूसुफ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि देखो उस डेट को, उस स्थान पर तुमने मुझे गड्ढे में डाल दिया, फिर वहाँ प्रभु ने मुझे उठाया, फिर वहाँ से तुमने व्यापारी को मुझे बेच दिया। हर चीज़ वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि तुमने कितनी बड़ी हानि किया। मैं तुमको माफ़ तो करता हूँ, लेकिन मैं तुमको एहसास दिलाना चाहता, आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक यू अवेयर कि कितनी बड़ी बुराई तुमने की है। कोई बुराई यूसुफ के जीवन में नहीं है, कोई भी ऐसी डिटेल्स को दिखाने की कोशिश नहीं करता है पास्ट में। बट वन थिंग 5th में कहता है कि तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे आगे भेज दिया है। कितना एक बड़ा रवैया एक ओल्ड टेस्टमेंट में वो है, लेकिन पिता के हाथ को देख पाता है। वचन 7 में और एक बार कहता है, वचन 7 में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। और एक बार बोलता है कि वो तो परमेश्वर का हाथ ना, तुमने नहीं बेचा था मुझे, तुमने खड्डे में नहीं डाला था, परमेश्वर का हाथ उसमें था, तुमने नहीं बेचा था, परमेश्वर का हाथ था। वचन 8 में और एक बार भेजता, 8 वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, अब इस रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा है। कितना बड़ा एक रवैया उसका है। तुमने कुछ नहीं किया था,
तुमने बुराई की होगी, लेकिन मैं यहां पर देखता हूं परमेश्वर ने उस बात की अनुमति दी, मुझ पर भेजा है। कोई कड़वाहट नहीं है, कोई भी बुराई के विचार उसके मन में नहीं है। क्या हमारे जीवन में यूसुफ के समान एक रवैया हो सकता है? वचन 8 का, किसी भी परिस्थिति व्यक्ति अगर हमारे विरोध में कुछ बुराई करता है, माफ करने में कठिन है। यूसुफ के भाई जैसे लोग हैं, गड्ढे में डाल दिया है पूरी तरह से। हम क्या कह सकता है, अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं हो, पर मेरा स्वर्गीय परमेश्वर ही ठहरा है। प्रभु हमारी सहायता करे, ये रवैये को हम ला सके। जैसे हमने देखा कि शुद्धिकरण का काम पूरा होना हमारे जीवन में जरूरी है। जब हम यूसुफ के समान रवैये को रखेंगे, जो पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह के समान स्वभाव उसके अंदर है, जो यीशु मसीह यहूदा के पीछे पिता के हाथ को देख पाया, यहाँ पर पुराने नियम में यूसुफ जो है अपने भाइयों की बुराई के पीछे परमेश्वर के हाथ को देख पाता और कहता है कि तुमने नहीं भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है। जब हमारा रवैया ये होगा कि इस बुराई को इस व्यक्ति के मन में मेरे विरोध में करने के लिए परमेश्वर ने, उसके पीछे परमेश्वर ने अनुमति दी है, हम बड़ी आसानी से माफ कर पाएंगे। कितना आसान था उसको माफ करना यूसुफ के। परमेश्वर का हाथ हर बात के पीछे देखना जरूरी है। तब उस शुद्धिकरण के काम को, जो हमने थिस्सलुनीके 5:23 में पढ़ा, हम प्रभु को सहयोग दे पाएंगे कि वो काम बड़े आसानी से प्रभु हमारे जीवन में कर सके। आमीन।